تو کیا وہ خوش ہوگا؟ نہیں. فرض کریں چھوٹی سی بات ہے، یہاں پر اس وقت استاد جی موجود ہیں، میں 2-3 دفعہ ان کا حکم نہیں مانوں گی، کیا کہیں گے؟ بہت بدتمیز ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کو نہیں سکھانا چاہیے کچھ بھی. ہاللیلویہ. اس کو پیار نہیں کرنا چاہیے. ابھی یہ ان کا پیار دیکھیں 17 کو وہاں بیٹے شان نے کی ہے عبادت، وہ کر کے ایگزیکٹ اس کے بعد گاڑی پر بیٹھے ہیں اور رات 12 بجے یہ اسلام آباد میں موجود تھے. کیوں؟ کیونکہ میں تابعداروں میں نظر آتی ہوں. ہاللیلویہ. کیوں استاد جی ذرا بول دیں، سچ ہے. ہاللیلویہ. تو عجیب طریقے سے خدا کو کام کرنا پڑا. وہ خود تو نیچے نہیں آیا، لیکن اپنے آپ کو تبدیل کر کے کلمے کے ذریعے کلمہ روح القدس بھیجا جبرائیل فرشتے کے ذریعے، اور اس نے آ کے ایک کمواری جو داؤد کے گھرانے سے چنی گئی تھی اس کے پاس بھیجا. اور وہ کمواری شروع سے موروثی گناہ سے آزاد رکھی گئی، پاک رکھی گئی. ہاللیلویہ. تب جا کر خدا نے اس کو اپنے بیٹے کی ماں ہونے کے لیے چن لیا. وجہ تھی ہمارا گناہ کہ یسوع کو نیچے آنا پڑا. عجیب وجہ نہیں ہے کہ ہم کریں گناہ اور خدا آئے زمین پر اور اپنے بیٹے کو میرے اور آپ کے لیے قربان کر دے. آمین. کیا یہ آسان بات لگتی ہے ہمیں؟ میرے خیال میں میں کہتی ہوں شرم کرنی چاہیے مجھے کہ میں کروں گناہ اور سزا پائے خدا کا بیٹا. خداوند مجھے معاف کر دے. اس لیے میں تڑپتی ہوں کہ جب بھی مجھے موقع ملے مجھے چاہیے کہ کلام کو پھیلاؤں تاکہ میں اپنے گناہوں کی معافی پاؤں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. عجیب طریقے سے خدا نے اپنے پیار کا اظہار کیا، اسی لیے اسے کہا گیا عجیب مشیر. بڑی خوبصورت بات ہے، ہم کو ایک بیٹا دیا گیا. دنیا میں ہمارے پاس بہت سے بیٹے ہیں. ہاللیلویہ. ہر خاندان. ابھی میں نیچے تھی پاسٹر اکرم کے گھر اور وہاں ان کے بیٹے، بڑے بیٹے کے 2 بیٹے ہیں، بڑی پیاری طرح کھیل رہے تھے. بیٹے دیے گئے، بادشاہوں کو بھی بیٹے دیے گئے. ہاللیلویہ. لیکن ان کے بیٹے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے قربان نہیں ہوئے. خدا کے پیار کی انتہا آ جاتی. ہاللیلویہ. دونوں جہان کا بادشاہ، ساری دنیا کا مالک اور خالق، اور پیدا کہاں ہو رہا ہے؟ سب سے عجیب بات، استبل تبیلا، جانوروں کے چارہ ڈالنے والی کھرلی، اس میں پیدا ہو رہا ہے. کس کے لیے؟ مجھ نکمی کے لیے. ہاللیلویہ. اور اس کے ساتھ ہی میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی یا میں چاہیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر وہاں جائیں اور وہاں جا کے جائے پیدائش کریں؟ ذرا زور سے سارے جواب دیں گے. کبھی نہیں، کبھی نہیں. لیکن ماں مریم کا صبر دیکھیے اور خدا کا ہمارے لیے پیار دیکھیے کہ وہ چلنی میں بھی خوش ہے آنے کے لیے، کیونکہ وہ عجیب مشیر ہے. سارے کام عجیب ہوں گے، آگے ہم دیکھیں گے 12 طرح سے کس طرح سے وہ عجیب مشیر کہلایا. وہ کس لیے عجیب کہلایا؟ ہمارے ہاں پرانے زمانے میں جب بیٹے پیدا ہوتے تھے تو جانتے ہیں کیا ہوتا تھا؟ اندر کا دروازہ جہاں ماں اور بیٹا پڑے ہیں، اور باہر جو ڈیوڑی کا دروازہ تھا وہاں کیا کیا جاتا؟ شریک کے پتوں کا صحرا لگایا جاتا. کیوں؟ کوئی غلط شخص اندر نہ. لیکن یہ بادشاہوں کا بادشاہ، خدا کا بیٹا، ساری دنیا کا خالق اور مالک، عجیب مشیر خدا قادر رب ابدی آیا، اور وہ کوئی صحرا نہیں ہے جو مرضی. کیوں؟ تاکہ میں اور آپ جا سکیں. میں یہ بھی بتاؤں گی کیسے ہم جا سکتے ہیں. کسی کے انتظار کے لیے، پیدائش کے دن کے لیے علم الفلکیات میں ستارے کا ذکر کبھی نہیں کیا.
हालेलुया। बता दीजिए मुझे, आपके हाथों में कलाम है, अगर किसी को, बहुत सीनियर पास्टर्स हैं आप सब बैठे, अगर आपको किसी भी बादशाह की पैदाइश के लिए सितारे ने बताया हो और राह भी दिखाई हो, उस बादशाह का नाम मुझे बता दीजिए। नहीं तो मेरे बादशाहों के बादशाह यीशु बादशाह का नाम ही एक ऐसा नाम है जिसके लिए सितारे को रहबर बनाया गया। हालेलुया, हालेलुया। ये है अजीब मशीर खुदाए कादिर अबे अब्दी। पेशन गोइयां कभी किसी के लिए नहीं हुई। हालेलुया। किसके लिए पेशन गोइयां हुई? सिर्फ मेरे यीशु के लिए, वो भी चंद माह चंद साल पहले नहीं, पूरे 700 साल पहले। हालेलुया। और वो 700 साल पहले यशाया को इस्तेमाल कर रहा है। रोया में भी 66 बाब सचमुच यशाया की किताब के सहीफे के, पूरी बाइबल के खूबसूरत तरीन अबवाब है। और उन अबवाब में आप यकीन करें, 7वें बाब की 14वीं आयत पढ़िए, वहां क्या लिखा है? कंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा, उसका नाम इमैनुएल रखेगी। आगे आ जाइए आप 9वें बाब पर, जो तलावत अभी हमारे लिए एल्डर साहब ने की। हमारे लिए एक बेटा तवल्लद हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया, हमारे लिए एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम क्या है? अजीब मुशीर खुदाए कादिर अबे अब्दी सलामती का रईस, और सदारत उसके कंधे पर। आमीन। इसके लिए भी पेशन गोइयां जो की गई हैं, किसी बादशाह के लिए कभी पेशन गोई नहीं की गई थी कि इस तरह का बादशाह आएगा। ये पेशन गोइयां सिर्फ मेरे और आपके नजात दहिंदा यीशु नासरी के लिए की गई। हालेलुया। तीसरी पेशन गोई अगर आप निकालते हैं यशायाह 11 और उसका पहली आयत देखिए जरा, वहां क्या लिखा है? और यसी के तने से एक कॉम्पल उगेगी और उसकी जड़ से एक नौन निहाल उगेगा। आपकी तालियां चाहिए। यसी कौन है? यसी दाऊद का बाप है, और दाऊद के घराने से मरियम और यूसुफ है। और इसीलिए कहा गया था, ए बैतलहम यहूदा की सरजमीन, तू किसी तरह से, किसी भी शहर, किसी भी रईस से कम नहीं। तुझसे एक बेटा निकलेगा, तुझसे एक रईस निकलेगा, तुझसे एक सरदार निकलेगा। और वो रईस और सरदार जिसको हम यशायाह 9 में देख रहे हैं, वही मेरा और आपका निजात है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इसी तरह से इसको अभी भी एक आपके लिए पेशन गोई और अगर यशायाह 61 देखें और उसकी पहली 4 आयत देखें, यशायाह 61 उसकी पहली 4 आयत, और वहां पर लिखा है, और रूहे खुदावंद मुझ पर है क्योंकि इसीलिए मुझे मसा किया गया। यीशु आया नहीं, यीशु पैदा नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ होना था 700 बरस बाद वो पहले यशायाह बोल। इसी को नबी कहते हैं जो नबूवत कर रहा है, और नबूवत कर रहा है यशायाह, जिसे आप बोलते हैं यशायाह। वो नबी कह रहा है कि यसी के तने से कॉम्पल निकलेगी और मैं उन मस्कीनों को खुशखबरी दूंगा, मैं जो कैद में है उन्हें रिहाई दूंगा। और कैद में रिहाई कौन पाता है? जो खुदा का प्यारा हो। यहां पर मैं एक छोटी सी अपनी गवाही देना चाहूंगी। जब हमारे 40 भाई जेल में थे, यूनाबाद, 15 मार्च 2015 का वाकया, उस वक्त मेरे सामने ये आयत आई थी, क्या जबरदस्त से गनीमत और जोरावर से कैदी छुड़ा लिया जाएगा? मैंने कहा खुदावंद तू कसर। हालेलुया। क्योंकि मेरा ईमान मेरे खुदा पर जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। एक दफा आयत आई, मैंने ऐसे बोला, मैंने इग्नोर किया। दूसरी दफा आयत आई, मैंने फिर इग्नोर किया। जब तीसरी बार ये आयत मेरे सामने आई तो मैंने कहा खुदावंद तू चाहता है कुछ किया जाए। और उस्ताद जी गवाह है कि मैं 3 बार उनसे मिलने गई जेल, और जब मैं तीसरी बार गई तो दहशतगर्दी की अदालत में मैं बाहर खड़ी थी। मैंने कहा खुदावंद आज जिस तरह 40 के 40 तारीख पर आए हैं,
अगले चंद दिनों में ये 40 के 40 अपने घरों में हो। और ऐसा ही हुआ। हैरत अंगेज बात है, सिर्फ 9 दिन, जनवरी की बात है, 6 जनवरी को मैं वहां थी और 11 जनवरी को वो सब के सब पास्टर अनवर फजल के पास थे। हालेलुया। हमारा खुदा ये खुदा है। तो क्या वो 700 बरस पहले इशाया को नहीं बता सकता था कि मैं तुम्हारे लिए एक बेटा बख्शूंगा, सदारत जिसके कंधे पर होगी और जिसका नाम क्या होगा? आप सब बोलिए, आप सबको आता है? हालेलुया। सलामती का अजीब मशीर, खुदाए कादर, अबदी और सलामती का शहजादा। हालेलुया। इस सलामती के शहजादे ने ऐसी जगहों पर जन्म तो लिया, अभी उसके और अजीब काम बाकी है। हम देखते हैं जिस सितारे का इल्मुल फल्कियात ने जिक्र किया था, उसी सितारे की रोशनी में बहुत से बादशाह अपने ममालिक से निकले। ये कौन सा अजीब बादशाह जिसने क्या किया? जिसके लिए इल्मुल फल्कियात ने गवाही दी, उसने पेशन गोई की, उसने बताया और उन्होंने चाहा उसे देखना। मजूसी हम उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सिजदा करते। और हमारा खुदा नन्हा सा बादशाह और बड़े बड़े बादशाह अपने ताज उतार के अपने तहाइफ समेत उसके सामने। ये है हमारा बादशाह, दुनियावी बादशाह नहीं है, आसमानी बादशाह है, लेकिन रहने हमारे दरमियान आ गया। जो 33.5 बरस वो रहा, उसने वो किया जो आज तक किसी कौम के नबी ने नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। और वो अजीब और गरीब तहाइफ लाए। आप अक्सर बहुत सी सालगिरहों पे जाते हो, सब मेरी तरफ गौर से देखो। हम अक्सर बड़े शौक से सालगिरह मनाते हैं, सालगिरहों पे जाते हैं। क्या करते हैं आप ही से पूछो, खड़े होके बताइए। आप ही से पूछूंगी, सालगिरह पर आप जब जाते हैं तो क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं। हालेलुया, यही मैंने पूछना था। गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट अगले की हैसियत या दूसरे लफ्जों में उसने जो दिया होता है उसका भी रिटर्न करना होता है। ऐसा ही है, बड़े खूबसूरत अंदाज में सजा के लेके जाते हैं। आज हम सोचें कि उस बादशाह के लिए कितने अजीब गिफ्ट आए थे। सोना बादशाह को देते हैं, ऐसा सुना था, हीरे जवाहरात देते हैं, सब कुछ देते हैं, खुशबुइयां देते हैं। यहाँ 2 गिफ्ट ऐसे हैं जो अजीब है, तभी वो अजीब मशीर खुदाए कादिर कहलाता है। मुर और लुबान। और मुर वाले ने क्या कहा था? मुर में लाया मौत का निशान, क्योंकि देगा तू अपनी जान, दुख उठा के खून बहा के होगा मसीह कुर्बान। हालेलुया। और मसीह वही कह रहे हैं, मसीह की सल्तनत ये इशाया ही कह रहा है। दूसरा चैप्टर अगर इशाया आप खोलते हैं तो वहां पर हेडिंग है मसीह की सल्तनत। मसीह नाम भी उसी ने दिया, इमैनुएल भी उसी को बताया गया। और आगे जाके अगर हम देखते हैं मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 1 बाब और उसकी 23वीं आयत, तो वहां भी क्या लिखा है? देखो कमवारी हामला होगी और उसे एक बेटा होगा, उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा क्या है? हालेलुया। इसका मतलब बेदार कलीसिया। थैंक यू जीसस। और इसी के साथ ही हमने मुर में लाया मौत का निशान। आपने देखा, ऐसा गिफ्ट हम किसी को नहीं देते। ये सिर्फ एक हमारे निजात दहिंदा के लिए ही मुख्तस था और उसी को दिया गया। तीसरा गिफ्ट जो था वो कौन सा था? लुबान। और लुबान क्या था? मैं लुबान साथ ले आया हूं ताकि तुझको नजर में दूं, दिल और जान से और ईमान से तुझको है यसु नन्हे मौलूद खुदा मान। हालेलुया। ये है अजीब मशीर खुदा कादिर अबदी और सलामती का रहस। आगे आके उसने सलामती ही बांटी, अमन ही बांटा, शिफाएं ही बांटी, जिंदगी ही बांटी। और इसके साथ उसने क्या बांटा? बदरू गिरफ्तार को बदरूहों से रिहाई।
कोड़ियों को कोड़ से रिहाई। इसलिए उसने, आप जानते हैं शायद 61 में क्या कहा, मैं इसलिए आया हूं ताकि मस्कीनों को रिहाई। 38 साल वाला कैद ही में था। कैद किस में था? उतनी सी जगह पर, और उसको एक पल में रिहाई। चल अपना कटोला उठा और चला जा, और चला गया। और इसी तरह से ये जो गिफ्ट हमें मिले, ये गिफ्ट ना सिर्फ यीशु को मिले, बल्कि उनका असर और नतीजा मुझे और आपको और कुल बनी नौ इंसान को और कुल अक़वाम को मिला। आमीन। बनी नौ इंसान और अक़वाम फर्क है। क्या उसने कहा? मैं आया हूं इसलिए ताकि तमाम कौमें नजात पाएं। मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें जिंदगी दूं और कसरत दूं। और ये जिंदगी, सलामती, अमन का शहजादा मेरे और आपके लिए आज का तोहफा लाया है। आमीन। हालेलुया। 2020 का साल कैसे डर के साथ गुजारा सबको पता है। हालेलुया। क्यों डर के साथ? कोरोना। पता नहीं किस वक्त कोरोना की गिरफ्त में जाएंगे और गिरफ्त के साथ ही जमीन की तह में जाएंगे। जब हजारों जाते तो मैं कहती खुदावन ये क्या है। और फिर एक बार पाकरू ने मुझे कहा, पाकरू की आग मांग ताकि ये वबा जल जाए। मेरे बेटे के पाक लहू का शावर मांग ताकि सबको जिंदगी मिले। और उसके बाद आज तक 2019 से 20 और 20 से 21 पूरे के पूरे 2 साल मैंने ये पूरी दुआएं लगातार हर रोज बाकायदगी से की। मैंने अभी भी नहीं छोड़ी। हालेलुया। और आपके लिए पैगाम है जो उसने मुझे दिया, अपनी कौम के लिए हमेशा दुआ किया करें। अब रह गई एक बात सिर्फ, मुझे नहीं पता पैगाम कितना लंबा होगा। मैं उस्ताद को कहती मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा, मुझसे बोला नहीं जाएगा, मैं आहिस्ता बोलूंगी, कलाम आप दें। इन्होंने कहा 5 मिनट सही देंगी आप। और मुझे नहीं पता कि 10 मिनट से ज्यादा हो गए होंगे। हालेलुया। ज्यादा आप हंस रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा हो गया। सिर्फ एक हवाला रह गया। क्यों यीशु चरनी में पैदा? क्यों खुदावंदों का खुदा होकर, कुल जहान का मालिक होकर सोने के महल में पैदा हो सकता है? हीरे जवाहरात 12 किस्म के, आप मुकाशफे को देखते हैं 21 बाब को 20 बाब को, उसमें उसका तख्त कैसे बना है? 12 तरह के तमाम आला हीरे जवाहरात। वो चाहता तो और हीरे जवाहरात लेकर अपना महल बना लेता अपने आने से पहले। वो इशाया को भी तो 700 बरस पहले गवाही दे रहा है, पेशन गोई करवा रहा है कि एक अजीब बशीर शहजादा आएगा, अबे अब्दी तुम्हें बेटा बख्शा जाएगा। तो क्या वो एक महल बना नहीं सकता था? चलो इसे भी छोड़ दें। वो किसी भी घर में कोई जगह नहीं अपने लिए रखवा सकता था खाली। हालेलुया। क्यों रखा गया उसे चरनी में? ताकि मैं और आप देख लें। इसके लिए मैं चाहूंगी आपसे खोलिए आस्तर 4 बाब और उसका 11 आयत प्लीज। बस इसके बाद थोड़ा सा रह गया और शॉर्ट पता है। आस्तर आप जानते हैं एक मामूली सी लड़की, मर्द कई उसका चाचे का बेटा था और उसने क्या किया था? उसको उसके माँ बाप की डेथ के बाद उसे पाला था। हालेलुया। खुदा ने पता नहीं उसकी तरबियत करवानी थी कि उसे मलका के ओहदे तक ले जाना था, और मलका के ओहदे तक जाने से पहले उससे यहूदी कौम को बचवाना था। यहूदी कौम को एक दिन में सबको कत्ल करने का मंसूबा बन गया। हालेलुया। मर्द कहीं ने कहा, आस्तर पैगाम भेजा गया, तू चली तो गई है महल में, काम क्या करेगी? अगर यहूदी मारे गए तो तूने अभी तक छुपाया होगा कि तू भी यहूदी है, तू भी मारी जाएगी। तो उसने कहा ठीक है। बादशाह के सामने आपको पता है उस वक्त कवानीन होते थे कि कोई भी शख्स बादशाह की इजाजत के बगैर बादशाह के दरबार में, उसके तख्त के सामने और उसकी हजूरी में हाजिर नहीं हो सकता था। जानते हैं आप सब? तो तालियां बजा दीजिए कि ये मैं सच कह रही हूं।
अस्तर ने, छोटी सी लड़की कह सकते हैं आप इस उम्र की, उसने क्या किया? उसने कहा मर्दकई को, बादशाह के सामने मैं अभी तक पेश नहीं हुई, मलका का औहदा मुझे नहीं मिला, और मलका वश्ती था उसका नाम, उसने भी अभी तक वो अपनी मर्जी से नहीं जा सकती है, लेकिन मैं तुझसे वादा करती हूँ, क्या करो? याद है सबको? 3 दिन का रोजा तुम रखो और 3 दिन का रोजा मैं अपनी खासों के साथ रखती हूँ, और दुआ में ठहरो, फिर मैं बादशाह के सामने जाऊंगी। और अगला लफ्ज उसने क्या कहा? मारी गई तो मारी गई, नहीं उसने कबूल कर लिया तो तुम्हारे लिए काम करके आऊंगी। और बादशाह ने उसे कबूल किया, क्योंकि वो निजात देना चाहता है, वो मौत देना नहीं चाहता। यीशु आया ताकि हम गुनाह में मर न जाएं, हमें जिंदगी मिले, और वो भी कसरत की और अबदी जिंदगी। हालेलुया। और फिर ऐसा ही हुआ, आस्तर जाती है, बादशाह हैरान हो गया, आस्तर तुझे क्या हुआ? ले मुझसे आधी सल्तनत भी ले ले। उसने कहा नहीं बादशाह, मुझे सल्तनत नहीं चाहिए, तेरे ही सबसे लाडले ने मेरी कौम के खिलाफ एक ऑर्डर पास करवाया है कि इनको एक ही दिन में सारे यहूदियों को कत्ल कर दे, मुझे वो ऑर्डर वापस दिलाना है। और उसने हामान को, आप जानते हैं, वो ले आया कई की जगह पर, मर्दकई की जगह पर, और मर्दकई की सरफराजी को आप देखते हैं कि उसकी खातम, उसकी मोर, अंगूठी वो उसको दे दी गई, और फांसी हामान को मिली, जो यहूदी कौम का, जो खुदा का दुश्मन और उसके लोगों का दुश्मन हो। आज मैं आपसे कहती हूँ, आज मैं और आप बड़े खुशकिस्मत हैं, तो खुदा हमें प्यार करता है, वो हमारी जंगें लड़ता है, वो मुझे और आपको बचाता है। और जब मैंने कोरोना की बात की थी तो उसका अगला हिस्सा अब निजात में है। उसने कोरोना से आपको निजात दी, आपको बचाया, मुझे बचाया। मेरी बेटियां, आप यकीन करें, मैं गवाही देकर कह रही हूँ, वो कहती थी इस बार मां गई, कोरोना होना है, पाकिस्तान में इतना फैला हुआ है, हमारी माँ ने मर जाना। छोटी बेटी अपने पास ले गई और मैं वहां रोया करती, हाय मेरे लोग जितने सारे, मेरी कलीसिया के लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उन्हें कोरोना हो गया, वो मर गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, उन्होंने निकाल दिया, तो मेरे लोग खाएंगे क्या? खाना खाते खाते मेरी आंखों से आंसू गिर गए। मेरी बेटी ने कहा क्या हुआ, ठीक तो है? मैंने कहा मैं ठीक हूँ, खाना ले जाओ। कहती हुआ क्या बताओ? मैंने कहा कुछ नहीं, बाद में बताओ। मैं खुदा के साथ जंग कर रही थी। जंग का मतलब है गिला कर रही थी कि मैं तो खा रही हूँ, मेरे लोग जो तूने मुझे दिए हैं, अगर मैं अच्छा चरवाहा हूं तेरी नजर में तो मुझसे भेड़े ना लेना। आप जानते हैं लिखा कलाम में, और अगर चरवाहा अच्छा ना होगा, पासवान अच्छा ना होगा, तो मैं तुमसे तुम्हारी भेड़े छीन लूंगा। मैंने कहा मुझसे ना छीन, मुझे वो चाहिए सारे लोग, और सबके सब यकीन मानिए एक भी कोरोना से, डेंगू से बिल्कुल नहीं। आमीन, हालेलुया। बल्कि डेंगू का एक बाहर का मरीज थाईलैंड का, वो पिछले दिनों बच गया, उस्ताद जी उधर ही थी, दुआई हुई। खुदावंद का शुक्र करें कि उसने हमें वाकई आज के कलाम के मुताबिक अगर वो निजात दहिंदा आया, जिसकी पैदाइश आप और मैं मना रहे हैं, जिसके लिए उस्ताद जी ने इतनी मेहनत इस प्रोग्राम के लिए की, और मैं बिस्तर से उसने मुझे उठा दिया, और मैं सचमुच सलूट करती हूँ खुदा बाप बेटे पाक रूह। आज आपने मेरे आंसुओं को देखा जो मैं कल बहा रही थी, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, और आप एक बार मेरे खुदा के लिए तारीफ जा दीजिए, मेरे शुक्राना। थैंक यू सो मच। आखिर में एक छोटी सी बात है, 25 दिसंबर 6 दिन के बाद है, हमने, अमेरिका नवंबर से मनाता है, शुरू कर देता है, हम दिसंबर से शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक पास्टर कितनी जगहों पर जाए, वो बारी बारी हर डेट में हर जगह पर पहुंचता है। आज इन्हें यूहन्नाबाद में होना चाहिए था, लेकिन खुदावन की कुदरत देखिए और मेरी किस्मत देखिए कि उसने उन पहाड़ों में मुझे लेके आया है जो पहाड़ यीशु को पसंद थे।
पहाड़ों पर जाकर वो दुआ करता, उन पहाड़ों में लेकर आया है जहाँ खुदा की हजूरी होती। खुदा बात करता था मूसा से, अलीशा से, इब्राहिम से, तो आप जानते हैं कि सीना और तूर को चुनता था। हालेलुया। और रेप पर 10 अहकाम देता। तो ये चीजें जो है उसने मुझे देकर कहा तुझे भी मेरी तरह ऐसी जगहों पर जाना है, मुझसे बोल जो मांगेगी दूं। क्योंकि मैं रो रही हूँ 2 माह से, तूने मुझे लटाया क्यों, मुझे काम करने क्यों नहीं दिया। तो उसने कहा तुझे पता है मेरा सादिक जितनी बार गिरता है उतनी बार मैं उठाकर खड़ा करता हूँ, खड़ा करूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी। एक दिन मैंने अपनी बेटी को कहा मुझे छोड़ा अस्पताल और पीछे मत जाना, फेंक के आ मुझे, मैं तंग आ गई अपनी बीमारी से। उस्ताद ने हमेशा मेरी हिम्मत अफजाई की और उसने मुझे नहीं छोड़ा। बड़ी वाली अमेरिका बाहर है, वो पैसा लगा रही है और छोटी खिदमत कर रही है और उस्ताद जी दुआ कर रहे हैं। और मैं बड़े फख्र के साथ इसको प्लीज गवाही को मेरे इसमें रखिए। उस्ताद जी लेना जरा गवाही, खत्म हो गई है, इसमें जगह नहीं है मूवी के लिए, अपनी में लेना नहीं वो और ये उसको उस्ताद मरकज को प्लीज। उस्ताद मरकज को जब पता चला कि मैं वाकई बहुत बीमार हूँ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मैं जा नहीं सकता हूँ। जहानाबाद और गुजरांवाले का अरसा बड़ा लंबा है सफर और मसरूफ भी वो आप जानते हैं, बाजी यास्मीन बहुत ठीक नहीं है। उन्होंने खुदा से मेरे लिए मुंह के बाल होकर मांगा, मुझे मेरी बेटी से मिला, मैं नहीं जा सकता हूं लेकिन तू मिला। और मैं किधर हूं? इस्लामाबाद। वो किधर है? गुजरांवाले में। इधर से मैं गई हूं अपने घर में, उधर से वो आए हैं मेरे घर में। मैं जहां बैठकर कलाम देती हूँ मैं वहां बैठी हूँ और वो जहां मैं सोती हूँ वहां खड़े हैं। और मैं कह रही हूँ आप आ गए हैं। और जैसे ही उन्होंने बाहें जैसे फैलाते हैं गले को लगाने के लिए, उन्होंने बाहें फैलाई और मैं जैसे ही उनके साथ लगी, यकीन मानिए ये सच मैं कह रही हूँ, मेरे सर के बालों से लेकर पैरों तक एक ऐसी कुव्वत गुजरी। और जब मैं टखनों तक वो कुव्वत टांगों तक आई तो मैंने डर के आंखें खोल दी। वो मेरी शिफा मुकम्मल ना हो पाई, वो शिफा हो रही थी, मैं अनपढ़ हूँ अभी। उन्होंने वो शिफा बाकी में उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती गई, टांगे दर्द होती रही और मैंने उन्हें फौरन बताया कि ऐसा हुआ। कह रहे मैंने मांगा था, खुदावन तेरा शुक्र हो, हालेलुया। और उन्होंने भी इतनी जोर से ना कि मैंने मांगा और मेरे खुदा ने दिया। मैं आपको मिलना और आपको गले से लगाकर बरकत और शिफा दिलाना चाहता था और खुदा ने मेरी सुनी और आज मैं आपके सामने खड़ी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं उनके लिए और बाजी यास्मीन के लिए बेहद दुआ करती हूँ। और थैंक यू उस्ताद जी, आप यहाँ ले आए और आज मुझे बोलने का मौका दिया। और उस खुदा का उससे ज्यादा, अभी तालियां आपकी कम नहीं होनी चाहिए प्लीज, जिसने मुझे निकम्मी को, फकीर को, बीमार को, कमजोर को खड़ा कर दिया। और मैं कहती मेरी टांगों में जान नहीं है, मेरे दिल को डॉक्टरों ने कहा वॉल्व जो है आपका सूजा हुआ है और तूने सब कुछ सही कर दिया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से 25 तारीख के लिए गिनना शुरू कीजिए उंगलियों पे। जिंदगी, सलामती, मोहब्बत, मुआफी, अमन, शिफा और अपना कलाम और अपनी हजूरी दे। आमीन, आमीन। और 2022 में इसके अलावा 2022 से आप हजारों साल जिए और हजारों साल कुव्वत के साथ जिए, आमीन, उसके साथ जिए। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आपको बहुत बरकत दे। आमीन।